Good morning, dear student. Yesterday we start our lesson number first of geography, India, size and location. Yesterday we seen about the civilization, ancient civilization of India. After that we seen how the day by day India is economically progressive country. Then we seen in India the different types of the culture we found, different types of the creed, caste we found, and various religions also we found in India, and their practices, the people who are belonging to that particular religion, their practices to their religions also in India. Then we turn towards the location of India, where is the India is situated among the continents. Then we see its size. After in the size we seen ki India is in the seventh number according to its size. Yesterday we seen कि India is situated in the uh, Asia continent. Okay. Now today we are going to see India and the world. Means how the India is connected to the other countries or in the or with the world. So the Indian land masses has the central location between the East and the West Asia. India is a southernward extension of the Asian continent. See in this map again, we are going to see कि India is in the Asia continent. Okay, focus on the Asia continent now. And in the middle of the Asia continent and to the southward we found the India. Where is India situated? India is situated in the Asia continent but towards the south side. Okay, तो ऐसा लगता है हमें यहाँ पे कि इंडिया को जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के ऐसे बाहर निकाला गया है. मीन्स मैक्सिमम पार्ट्स विच इज टैपर टूवर्ड साउथ साइड that we found कि it is the extra part of the Asia continent. Then and it is the middle of the continent. India is in the middle of the continent. The trains Indian Ocean routes, trains not here is the trains actually they need the trades Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East India provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish the close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and with the southeast and the East Asia from the eastern coast. So that I am going to explain here. See again the India on the map of the world. See India having now the vast coastline. Means इंडिया को इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री को जनरली फाउंड नहीं होती है. मीन्स है नहीं, जो इंडिया को कोस्ट लाइन है वो बाकी कंट्रीज़ को नहीं है. सो दैट इंडिया कैन कीप आई अपॉन द ओशनिक रूट्स. जो ये ओशनिक रूट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री से या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को, तो ये इंडिया जो है इन सभी रूट्स पे क्या रख सकता है, एक आई अपना मीन्स वॉच रख सकता है कि कौन सा ट्रेडिंग कहाँ पे हो रहा है या कहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ हो रहा है या ट्रेडिंग कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है. और इंडिया के लिए सी कोस्ट की वजह से अदर कंट्रीज से और अदर कॉन्टिनेंट से ट्रेडिंग करना इजी हो गया है. बट इन द प्रीवियस एज मीन्स 500 years ago it was not easy कि तब जो ट्रेडिंग रूट्स है थ्रू द सी उतना डेवलप नहीं हुआ था. बट नाउ डेज वी कैन सी कि ट्रेडिंग रूट्स आर डेवलप टू द ओशनिक ऑल्सो. मीन्स मेनी शिप्स जो है, बड़े बड़े जो शिप्स है वो क्या होता है, वो मूविंग होते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक बाय दैट सी रूट्स. सो
in today's world that sea route is found and sea route is joined to the every continent to each other. Got it? Now we are moving. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the India's ocean. So I told you student कि India having a long coastline, so that India having a eminent position इन द वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स इंडिया को बहुत बड़ी पोजीशन मिली है वर्ल्ड हिस्ट्री में. इंडिया को बहुत बड़ा माना जाता है बिकॉज ओनली इंडिया हैविंग दैट बिग कोस्ट लाइन. देन India's eminent position is in the Indian Ocean, and see Indian Ocean get the name, see here last line, which justify the naming of an ocean after it, means Indian Ocean get the name just because of the India, means India से ही Indian Ocean को name मिला है. Then do you know, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. मीन्स जैसे ही सुएज कैनल का डेवलपमेंट किया गया वैसे ही जो इंडिया का डिस्टेंस है यूरोप से वो रिड्यूस हो गया है. सी दैट इज़ द पिक्चर ऑफ सुएज कैनल. जिसने क्या किया, सुएज कैनल से क्या हुआ है, जैसे ये सुएज कैनल स्टार्ट हो गया है तो इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप से वो 7,000 किलोमीटर से कम हो गया है. गॉट इट? इसके जरिए ही यूरोप से हमारा ट्रेड, इंडिया का ट्रेड होता है. इंडियाज contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. Means see कि first land routes was developed, and through the land routes the world trading was going on. So the India was also connected through the land routes because at that time the peoples were unaware about the sea route. But nowadays trade is fast developed because of that sea routes. The various passes across the mountains in the north have provided a passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such international interaction for a long time. Means see which various passes across the mountains in the north have provided the passage. Means जो नैरो पैसेजेस है दैट ऑल्सो डेवलप, एंड उस पैसेज से भी जो है एंशंट मैरिनर्स है और ट्रैवलर्स है वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाते हैं और एक ओशन से दूसरे ओशन में इंटर कनेक्शन उनका चलता रहता है, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से भी हमें दिखता है. जैसे कि देखो इस मैप में दिया गया है दैट सी रूट्स, ब्लू कलर डॉटेड लाइन इज शोविंग अस द सी रूट. सपोज मुंबई इज द हार्बर, एंड फ्रॉम दैट द ट्रेडिंग रूट्स आर मूविंग फ्रॉम दिस. देखो ये जो स्मॉल छोटे सा लाइन है यहाँ से जो है इंडिया के इस साइड में जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ में जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, इनसे क्या हुआ है यहाँ पे सी रूट जाके कनेक्ट हुआ है. देन साउथ साइड ऑल्सो वी आर सीइंग कि हियर इज़ द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आता है तो यहाँ पे भी सी रूट से कनेक्शन क्या हुआ है, जॉइंट हुआ है. देन कोलकाता इज अगेन द पोर्ट, एंड फ्रॉम द कोलकाता ऑल्सो the different types of the tradings are going on. So that kind of the sea routes now developed, and trade is progressed और vast. नहीं, अभी trade क्या हुआ है, बड़ा है. Then these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. Means क्या होता है, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे. Suppose your friend, he is going to, means he is belong to other family and you are belong to another family, means you both are belongs to different family.
तो his family having a different rules and regulation and your family having a different rules and regulation. तो when you come to close contact, तो जनरली हम लोग क्या होते हैं, यूज टू जब हो जाते हैं तो हम कोई बातें शेयर करते हैं, या तो हम जैसे बिहेव करते हैं, जो हमारी अच्छी चीज़ें होती है वो आपके फ्रेंड्स सीख जाते हैं, और आपके फ्रेंड की जो चीज़ें आपको भा जाती है, जो अच्छी लगती है, वो आप सीख लेते हो, है ना। मीन्स ये क्या होता है, इजीली होता है, ये कोई आपको जानबूझ के पकड़ के ऐसे सिखाता है कि नहीं तू ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसा होता है क्या? नो। तो हम क्या होते हैं, इजीली इसको ये कर लेते हैं कि नहीं, इजीली हम उसको, ये बात आपको अच्छी लगी तो आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वैसे ही आपका फ्रेंड भी इजीली एक्सेप्ट करता है। तो इन दिस सेम वे जो अदर कंट्रीज़ है उनका जो हमें ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो अच्छा लगा, या उनकी कोई जो नई चीज़, नई टेक्निक उन्होंने अप्लाई की है, और टेक्निक अगर हमें अच्छी लगी तो हम उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एंड सेम टेक्निक वी डेवलप्ड इन आवर कंट्री। एंड जो उनको इंडिया में अच्छा लगा है वो वाले कंट्री हमसे लेके जाते हैं, है ना। जैसे कि हम पहले देखते हैं जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे इंडिया में, है ना, इन दैट टाइम व्हाट दे डिड कि यहाँ से वो डायमंड चुरा के लेके जाते थे, यहाँ से वो गोल्ड लेके जाते थे, है ना। जो इंडिया का उनको भाता था वो कल्चर वो लेके गए। फिर उनके हमें कुछ गेम्स हमने जैसे लगान में देखा कि हम लोग क्रिकेट कहाँ से सीखे हैं, तो ब्रिटिशर्स हमें दे के गए हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें जो है जो हमें अदर कंट्रीज़ की अच्छी लगी वो हमने सीख ली है, और कुछ जो उनको अच्छी लगी वो इट मीन्स हियर आर द एक्सचेंज ऑफ द ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ द एफर्ट्स, मीन्स ये जो सब कुछ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ओके, देन द आइडियाज़ एक्सचेंज हो गई। Then the ideas of the Upanishads and the Ramayanas, the stories of the Panchatantra, the Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world. Means see, you know कि India having a religious background, so that religious stories, religious means जो foreigners है ना वो इतना भगवान भगवान नहीं मानेंगे, बट ये जो हमारे जो उपनिषद है, वेद है, रामायण से, इसे बहुत कुछ उनको सीखने के लिए मिलता है, इसलिए वो उसको पढ़ते हैं। कुछ लोग तो उस पर PhD करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने ये जो मैथोलॉजी है ये उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देन दे लाइक आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, दैट पंचतंत्र टेल्स आर वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा टैलेंटिव है वो। उसको पढ़ने से क्या होता है, आप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैलेंट आ जाते हैं, तो वो जो स्टोरीज़ है वो भी वो सीखने की कोशिश करते। देन द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, जो इंडिया में डेवलप हुआ है बट उसको चुरा के बाकी कंट्री के लोग लेके गए, बिकॉज दे लाइक इट, उन्होंने उसको फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ठीक है। देन दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, the spices, the muslin and the other merchandise were taken from India to different countries. जैसे कि हमें जो चाइना की चीज़ें अच्छी लगी हो हम लेके आते हैं ना इंडिया में, वैसे ही बाकी कंट्री को हमारा सिल्क वॉर्म पसंद था, सिल्क पसंद थे। देन डायमंड पर्ल्स, आई टोल्ड यू, तो दैट जो चीज़ें थी वो इंडिया से वो परचेस करके इंपोर्ट करके लेके जाते थे, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, सॉरी। देन ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हमने बाकी कंट्री से क्या सीखा है, वी सी इन द ग्रीक स्कल्पचर्स, कैसे स्कल्पचर्स बनाया जाता है। देन आर्किटेक्चर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, डोम बनाते समय आपने डोम कहाँ पे डोम शेप देखा है, मीनारेट में जनरली हम देखते हैं। जैन आगरा में देखा, आगरा के ताजमहल इज़ लाइक इन द डोम शेप। तो ये जो शेप्स है ये हमारे इंडिया के कारीगर को नहीं आते थे, तो हमने जो ये बनाने वाले हैं आर्किटेक्चर, ये कहाँ से लाए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अलग अलग पार्ट से लाए हैं, ग्रीक से लाए हैं, रोम से आए हैं, और फिर हमारे कंट्री के जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने इसको सीखा है। तो ये सब चीज़ें होती है, मीन्स जिस कंट्री का हमें जो अच्छा लगे वो हमने लिया है, और हमारे कंट्री में जो अच्छा लगा वो
उन्होंने ये किया है। समझ में आया? तो दैट वॉज टुडेज पार्ट. The next part is there, India's neighbors, that we are going to see in the tomorrow's lecture. Okay, thank you. You have to read this part again.